چلیے آج آپ کو جنت کے متعلق بتاؤں، کچھ جنت کے مناظر کو الفاظ میں بیاں کر کے دکھاؤں۔ ایک بہترین ویڈیو جسے دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جنت کے اندر داخلے کے مناظر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی، اور جنت کی ایک طرف دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے، جس سے ان کا ظاہر و باطن پاک ہوگا۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ، انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد اور کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ سب مٹ جائیں گے۔ جنتیوں کے دل شیشے کی طرح صاف ہو جائیں گے، اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا، جیسے 14ویں کا چاند، اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جوان نظر آئیں گے۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، تو تمام جنتیوں کا قد بھی 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا، ان کا حسن بے مثال ہوگا۔ جنتیوں کو داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا، ان کا ہر بول روح کو سکون دے گا۔ ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی، یعنی انتہا درجے کا صبر اور دائمی سکون۔ اب یہ جنتی اپنے ابدی ٹھکانوں کی طرف بڑھیں گے، جہاں ان کی عمریں اور اخلاق بھی خاص بنا دیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی، یعنی جنت میں عمر ہمیشہ 34 سال رہے گی، نہ بڑھاپا نہ موت۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ ان 6 نبیوں کی صفات دے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے سب کو۔ وہ منظر سب سے حسین ہوگا، اور اس دن بہت سارے چہرے ترتازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالیشان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک، اب کوئی محرومی نہیں رہے گی۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، احکامات مانے، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، جذبات کو میرے آگے قربان کیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو، تمہاری دنیا کی محنت کا صلہ مل گیا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپٹ بچھائے جائیں گے، جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں بلبلائیں گی، ایسے ڈیزائن نیچے بنے ہیں۔ تو سوچو، میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا؟ جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا یہ بے مثال ہے۔ گاؤ، تکیے لگواؤں گا اور آگے سراہیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی، ایسی راحت جو دنیا میں نہیں تھی۔ وہ وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی، موسم ہمیشہ خوشگوار رہے گا۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی تو قدرت کا ایک خاص کرشمہ ظاہر ہوگا، وہ اسے مل جائے گی۔ اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی باہر نہیں گرے گا، اور اس کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ یہ خاص چشمہ ہے۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے، جو صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔
बाकी जन्नत वालों को इस शराब के 2-4 कतरा डालकर पिलाए जाएंगे ताकि वो भी चख सकें, और जन्नतुल फिरदौस वालों को खालिस पिलाई जाएगी और पिलाने वाला रब खुद होगा। ये उनका मकाम है। और बाकी जन्नतियों को उनके नौकर पिलाएंगे जो उनकी खिदमत में हमा वक्त हाजिर होंगे। उनको एक ऐसी शराब दी जाएगी जिसमें अल्लाह पाक काफूर मिक्स करके देगा, निहायत ठंडी। नेक लोग वो जाम पीएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी, बहुत लजीज। हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत तुम्हारा वो मकाम है जहां पर अल्लाह तुम लोगों को तोहफे भेजा करेगा। मियाँ बीवी जन्नत के महल में बैठे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक होगी। खादिम दरवाज़ा खोलेगा। खादिम देखेगा तो एक फरिश्ता खड़ा हुआ होगा जिसके हाथ में थाल होगा जो कि कॉर्ड होगा। फरिश्ता कहेगा, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके साहिब के लिए ये तोहफा भेजा है अल्लाह ने। खादिम आकर बताएगा कि बाहर फरिश्ता आया है, वो अंदर आने की इजाज़त चाहता है, तोहफा लाया है। फरिश्ते को इजाज़त मिलेगी तो वो थाल पेश करेगा। मियाँ बीवी थाल के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे। वो कहेंगे, ये फल भेजा है अल्लाह ने, ये तो अभी खाया है हम दोनों ने, वही मालूम होता है। फरिश्ता कहेगा, अल्लाह फरमा रहा है, थोड़ा सा चख लो, शायद कोई और चीज हो, इसका जायका अलग है। वो एक टुकड़ा निकालकर मुंह में रखेंगे तो मुस्कुरा पड़ेंगे, इसका मजा ही कुछ और होगा। अल्लाह ने इस एक फल के अंदर जन्नत के जितने भी फल हैं सबका जायका एक साथ समो दिया। जब उन्हें उनमें से मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे, ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। तो उन दोनों को भी एक अलग मजा आएगा इससे। फिर अल्लाह पूछेगा, हाँ मेरे बंदे, अब बताओ वही है या कोई और चीज है? वो कहेंगे, या अल्लाह, फल तो वही है जो हमने दुनिया में खाया था या पहले खाया था, लेकिन जायका बिल्कुल अलग है। और यही में नहीं, जन्नत के अंदर दुनिया के तज़किरे भी होंगे, दुनिया के हाल अहवाल भी होंगे कि फलां दोस्त का क्या बना, यार उसे बहुत तबलीग की थी लेकिन उसने नहीं मानी, वो बेचारा जहन्नम में है या जन्नत में, फलां जगह पर है। ये तज़किरे होंगे। जैसे हमारे यहाँ पर दिल करता है कि आज 5-8 दोस्त सब मिलकर पार्टी करते हैं या फलां दोस्त के पास चलते हैं, आज बिरयानी बनाते हैं। सारा कुछ जन्नत में होगा जो हम यहाँ पर दुनिया में करते हैं। हर ख्वाहिश वहाँ एक इशारे पर पूरी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स अल्लाह के पास जाएगा और कहेगा, या अल्लाह, मुझे खेती बाड़ी करनी है, काम की तमन्ना करेगा। अल्लाह फरमाएगा, जरूरत क्या है, तुम्हें जन्नत दे दी है, अभी भी तुम्हें खेती बाड़ी करनी है? अल्लाह अपने बंदे का लौट देखेगा। अल्लाह कहेगा, ठीक है, फिर जाओ करो खेती बाड़ी। अल्लाह इसके लिए असबाब पैदा करेगा और वो हिल जूतेगा और जानवर चलाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो कहेगा अल्लाह वो मानेगा। अल्लाह जन्नत में अपने बंदे का हर लॉर्ड मानेगा। जन्नत की वुसअत इतनी है कि एक अदना जन्नती का महल भी कई 100 साल की मसाफत जितना बड़ा होगा। एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की, और उनके दरमियान मिट्टी की जगह कस्तूरी होगी। वहां न गंदगी होगी, न थूक, न फजला। सब कुछ पसीने की सूरत में निकलेगा, जिसकी खुशबू मुश्क जैसी होगी। उनके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा चमकते रहेंगे। अल्लाह पूछेगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, या अल्लाह, क्यों न हो, आपने हमें वो दिया जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह फरमाएगा, अब मैं तुम्हें अपनी रज़ा दूंगा, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूंगा। वो कहेंगे, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। बेशक वो गफूर व शकूर है। ये है वो अबदी ठिकाना जहां ना कोई खौफ है और ना कोई गम, सिर्फ अबदी खुशियां और राहतें हैं।
जन्नत में एक बाजार होगा जहां हर जुमा लोग जमा होंगे और उनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाएगा। शुमाल की एक हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर कस्तूरी बिखेर देगी, जिससे उनका हुस्न बढ़ जाएगा। जब वो अपने घर वापस जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो पहले से भी ज्यादा हुसीन हो गए हो। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए जो उन नेमतों के हकदार बनेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें फॉलो करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह। जन्नत के दरख्त इतने बड़े हैं कि एक घड़सवार 100 साल तक उनके साए में चले तब भी साया खत्म न हो। वहां सिदरतुल मुंतहा होगा, जिसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े और फल मिटकों जैसे होंगे। कुरान में है कि मोमिन के लिए जन्नत में एक ही खोखले मोटी का खेमा होगा जो 60 मील ऊंचा होगा। वहां ऐसे परिंदे होंगे जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो बहुत खूबसूरत और लजीज होंगे। जन्नती का दिल जब किसी परिंदे को खाने का करेगा तो वो खुद ही भुनकर उसके सामने आ गिरेगा। वहां शहद की नहरें होंगी जो बिल्कुल साफ होंगी, जिनका जायका दुनिया के बेहतरीन शहद से लाखों गुना बेहतर होगा। दूध की नहरें होंगी जिनका जायका कभी तब्दील नहीं होगा, वो हमेशा ताज़ा और ठंडा रहेगा। रोज़ादारों के लिए एक खास दरवाज़ा होगा जिसका नाम रियान है। इससे सिर्फ वही दाखिल होंगे। जन्नत में नींद नहीं होगी, क्योंकि नींद मौत की बहन है और वहां मौत का कोई वजूद नहीं है। वहां चांदी के ऐसे बर्तन होंगे जो शीशे की तरह शफ़ाफ होंगे। ये अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। वहां की मिट्टी कस्तूरी और ज़ाफ़रान की होगी, जिसकी खुशबू पूरे माहौल को महका कर रखेगी। वहां ऐसे घोड़े होंगे जो याकूत के बने होंगे और परों की मदद से जहां चाहें उड़कर ले जाएंगे। जन्नत के बाजार से जब लोग वापस आएंगे तो उनका हुस्न इतना बढ़ चुका होगा कि घरवाले पहचान न पाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जन्नत वालों, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज दूं? वो कहेंगे, या अल्लाह, इससे बेहतर क्या होगा? फिर अल्लाह अपने नूर के पर्दे हटा देगा और जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे। ये सबसे बड़ी नेमत होगी। अल्लाह के दीदार के बाद जन्नतियों के चेहरों की चमक इतनी बढ़ जाएगी कि वो सूरज को भी मात दे दें। जिन लोगों ने नेक काम किए उनके लिए भलाई है और इससे भी ज्यादा, यानी अल्लाह का दीदार। नेक लोगों को अंबिया और शुहदा की पड़ोस नसीब होगी। वो उनके साथ महफिलें सजाएंगे। वहां हर वो तमन्ना पूरी होगी जो इंसान के दिल में आएगी। अल्लाह किसी की ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ेगा। वहां न कोई बेहूदा बात सुनेगा और न कोई गुनाह की बात। सिर्फ सलामती और खैर की आवाजें होंगी। उन्हें सोने और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका लिबास रेशम का होगा और उनका रब उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। अब न वहां से कोई निकालेगा और न वहां कभी कोई तंगी आएगी। ये अबदी अमन का घर है। जन्नत की आखिरी हद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये इतनी वसी है कि तसव्वुर भी आजिज है। यही वो असल कामयाबी है जिसके लिए दुनिया में मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह हमें इसका अहल बनाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियोस देखें तो हमें फॉलो करें और कमेंट्स में आमीन लिखें। दुआ है कि अल्लाह पाक इस मेहनत को कबूल फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। वीडियो में दी गई तमाम मालूमात को मुख्तलिफ इस्लामी कुतब से लिया गया है, जिसका मकसद सिर्फ दीन इस्लाम की फलाह और अल्लाह के दीन की रज़ा है। ये वीडियो सिर्फ इस्लामिक पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई, इसका और कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह के दीन की फलाह और दीन इस्लाम की तबलीग करना और दीन के मुतालिक मालूमात देना है। अगर कोई गलती कोताही होगी हो तो हमारी गलती कोताही को माफ़ कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।